I've been working with Cummins till last January, since past 5 years. I have completed my MBA from XLRI recently in 2020. I'm looking forward on a startup for farm mechanization. We have discussed yesterday, and I guess most of the group today as well is the same. Yeah, I think we'll have most people, let's say half the people same and half the people might be different. Something like that Right. will happen. Shekhar. Hello, sir. Yes. This is Shekhar Prasad. I'm electrical engineer by profession. Currently working with Worley Fastest Group in Mumbai. I'm also looking for a startup. That's why I'm here. Realme 2 Pro. Getting the voice properly. Hello. Your name is shown as Realme 2 Pro. Hello. Okay, we can come back to you later. Mr. Pawan Agarwal. Hello. Mr. Pawan, can you hear me? Ayush Gupta. Yes, I am Ayush Gupta from Bhawanipur, Gujarati Education Society. I am from commerce background. Okay. Abhishek Chanta Group. Hello, Vayara. Hello everyone, myself Abhishek Kumar, founder of Janta Group. Basically, my organization is manufacturer of LED lights. Neeraj Sharma. And I will also start a free online classes. बहुत सारे लोग वो बोल रहे थे कि हम ये स्टार्टअप खोज रहे हैं, तो जिनको भी लाइटनिंग एंड एजुकेशन के फील्ड में काम करना है मेरे साथ आ सकते हैं. हम एकदम पूरा एग्री. Neeraj, yes. Yep. Now, hi Vishal, hi everyone. This is Neeraj. I'm based out of Gurgaon. I work in data-related technologies. Okay, thank you. Okay, we didn't have a Realme 2 Pro. Can you hear me? Hello. Hello. Yes, please introduce yourself. Yeah. Hello. Hi. Hello, sir. Hello, everyone. My name is Nisha, and I am a pharmacist, and I have also done MBA. And I have an idea. I'm from Gaya district. I'm from Bihar, right? And from my childhood, I have seen a problem right there. That is, as you all of you know, that India is a malnutrition country. अभी introduction round कर रहे हैं sir. Problem पे आते हैं. Just let's me finish the introduction. Then I'll give you the mic. Okay then. One more person, I think Pawan Agarwal. Please introduce yourself, Mr. Pawan. Are you able to listen? Okay. We have one more person join, Mr. Prasanta. Yes, Mr. Prasanta, can you hear? Please introduce yourself. Okay. Okay, so just I'm muting everyone once. So that yeah. Okay, Nisha. Yes, you can talk about your ideas. Yes, please. Yeah, as I was telling to you, I have seen that as India is a malnutrition country, being a pharmacist, I have seen this problem that our country is a malnutrition country. All right, and the second problem is that
in Patna, when I was preparing for medical examination, I was studying there. I faced a problem of hunger. So I wanna initiate something like to feed the hunger, right, at a very reasonable price and nutrient rich food. All right, we could start right from Patna or Gaya. See, in Patna, PG room, Patna is a hub for all like medicos, engineering preparing students. All right, and Gaya is also a hub for medical colleges, engineering colleges, and etc. etc. All right, so we could focus on this small niche. All right, in the first round when we enter in the market as feed the hunger. What we could do, we could make good food, nutrient rich food, and sell them at reasonable price in like tiffin box, right sir? Like lunch box, tiffin box, they could order us like what I need is I need a good team like 4 or 5 people who can work right in Patna or in Gaya. All right, from where we start. All right, and I have a plan for that to start that business. That is a very cost efficient, and no, not so much effort is required. All right, and no so many people are required. Only we required, or the only required is the money, initial capital, and good team, and rest will be rest whatever we will need, we can have from the market, right? So in my opinion, feed the hunger is good. After the lockdown we could initiate this like initiative. So yeah, tell me. Okay. Abhishek जनता कोई comment या कोई suggestion निशा के लिए? Abhishek is also from Patna. Okay, hello Abhishek. Hello, Abhishek, I think he is not audible. Anybody else have comment, suggestion, please? Question? Yes. बीच में अच्छा, okay, ठीक है. Mr. Neeraj can speak, then Abhishek can help. Yeah, I mean Abhishek can also speak. Sorry. Yes, Neeraj. Nisha, thank you for putting up this idea. Really happy that you are having a vision to feed the hungry people. It's a divine idea. I really like it. So just a couple of questions, like there are a lot many people and already there are lot many NGOs and everyone is involved in it. And if you are just looking towards this venture as a social venture, or it's something like there is some money involved, you are saying, and you are looking for some profits as well. First question. Second question is this idea is not like which has emerged right now in 10-15 years. It's a 5,000-year-old idea. There is a auntie's kitchen in my neighborhood. I live in Gurgaon, and that auntie and uncle, they are I don't know about their whole family story, but they just 2 people are living, and they are running that auntie's kitchen from past 7-8 years. I have seen very reasonable food, home cooked food, and very tasty food. People are already doing it. So how you will differentiate yourself from that? Okay. My differentiation is that it will be this is like what I said, feed the hunger. All right, when I was in hostel, then at some time I get good food, sometime I don't get good food. All right, and not at reasonable price. All right, so auntie's kitchen, like what, as you said, that they are given according to my idea, but I have not seen that in Patna, or like when I was studying in Muzaffarpur, I have not seen that kind of thing. So I wanted to start it right there. All right, and my business, like my first business plan is like food and food and confectionery business. All right, I have already started confectionery business, but
unfortunately it failed, all right, because of absence of good team. Actually I get I already got some what does it called advance में क्या बोलते हैं उसको, हेलो या गो अहेड प्लीज, क्या आप मतलब किस बारे में पूछना चाह रहे हैं आप कि नहीं, मैं कह रही हूँ कि मुझे एडवांस में जो पैसे दे के ऑर्डर यस एग्जैक्टली, मुझे एडवांस ऑर्डर भी मिला, लेकिन मेरे पास क्योंकि मैं अभी वहां से बिहार से काफी दूर हूँ, यूपी में हूँ, तो यहाँ की चीजें मैं वहां पे सेल करना चाहिए, तो मुझे ऑर्डर भी मिल गया, लेकिन मेरे पास वहां पे कोई आई डिडंट हैव अ गुड टीम, सो इट जस्ट सीज माय आइडिया जस्ट सीज राइट देयर. ओके. So are you looking for some profit making out of it, or just yes, a social venture? No, I'm not, this I just want a profit making business along with social business also, like very less profit it will be, it will have, I think. Okay. ठीक है, तो एक्चुअली पहला चीज तो हो गया ना, सो इट्स आइदर प्रॉफिट मेकिंग और नो प्रॉफिट मेकिंग. सो no, the first thing is clear profit making. थोड़ा ज्यादा इज डिफरेंट, वो चोरी जैसा है. Okay. 1 रुपए की या 100 रुपए की चोरी है, तो प्रॉफिट इज आल्सो सेम. 1 रुपया प्रॉफिट है, 100 रुपया है, 1000 रुपए है, it's all profit making. So the business which is profit making is registered in a different way than NGO. Although some people might do like a profit making company बोल के NGO जैसे काम कर सकते हैं, but ultimately वो business बंद करना पड़ेगा because पैसे खत्म हो जाएंगे आज नहीं तो कल. नहीं, मुझे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं करना है. करेक्ट. तो एक पहला क्लियर यू कैन डू, इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस. विशाल सर बेसिकली इनका समझ नहीं पाए थे क्योंकि हम डिस्कनेक्ट हो गए थे. तो समझाएंगे निशा थोड़ा सा हिंदी में और थोड़ा सा सिंपल 1 मिनट के अंदर. ठीक है, बस वही है कि पीजीज वगैरह जितना भी है पटना में उसमें कनेक्ट करना है और सबको अपना टिफिन देना. बस एक टिफिन सिस्टम शुरू करना है, एक ऑनलाइन टिफिन सिस्टम अपना, जिसको जब भी खाना है वो सुबह को, अगर दोपहर को खाना खाना वो सुबह को ऑर्डर कर दे, पे कर दे, या फिर खाना लेने के बाद पे कर दे. इस तरीके का एक चीज सिस्टम जनरेट करना है. पटना तो बहुत बड़ा सिटी है, अपना एक जगह जहाँ खाना बनेगा और उसमें उसका आपका एक किचन रहेगा. हाँ, एक किचन तो होगा ना, किचन तो ऑफ कोर्स होगा, बनाने वाले लोग भी होंगे. तो किचन किसका होगा, तुम्हारा होगा किचन या नहीं, किचन मेरा अपना होगा, किचन किसी और का नहीं होगा. अगर किचन किसी और का होगा तब टेस्ट भी तो उसका होगा ना, फिर तो यही जोमेटो और स्विगी वाला बात हो गया. तो किचन अपना रहेगा, तभी तो अपने को क्या देना है क्या नहीं वो डिसाइडेड रहेगा. ओके. हाँ अभिषेक. हालांकि अभी तो क्या बोलते हैं, अभी तो आपके लिए मतलब सही समय नहीं है स्टार्ट करने का, जैसे हमको लगता है, क्योंकि इस कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग वो बाहरी खाना खाने से बच रहे हैं. आपको तो अभी मतलब 3-4-5 महीना वेट करना पड़ेगा. हालांकि पटना बहुत बड़ा मार्केट है. हम भी बोरिंग रोड साइड रहते हैं, तो उधर भी तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उधर आते हैं. इसी टाइप का सपोर्ट चाहिए. बहुत सारे हॉस्टल वाले से भी मेरा संपर्क है, जिनका डायरेक्ट अगर किसी टाइप का सपोर्ट चाहिए तो वो मेरे से आप संपर्क करना. तो अभिषेक तुम पटना में रहते हो, तो इसमें मतलब ये कोरोना हटा दो, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, लाइक प्रैक्टिकली स्टूडेंट लेंगे नहीं लेंगे, प्राइसिंग वाइज या कुछ और, या अभी क्या करते हैं, वो कैसे खाते हैं? बेसिकली अभी खाते हैं कि जिस आसपास में मिल जाता है. जैसे दो चीज कोलकाता में होता है, आसपास में होटल मिल जाता है, और एक काम कुछ आदमी कर भी रहे हैं पटना में. ठीक है, लेकिन अब एक तो होता है मतलब और जगह पता नहीं, एक हम लोग का बिहारी लोगों का मेंटालिटी होता है कि 1 रुपया भी जहाँ सस्ता मिलेगा ना तो वो लोग वहीं खाएंगे. ठीक है, तो आप इस चीज में आप अपना वो ब्रांडिंग कर सकते हैं. कुछ ठीक है, देगा क्योंकि अमन वांट टू से समथिंग. यस अमन, हाँ बताओ.
हेलो सर, अभी स्टूडेंट की बात चली और खाना की बात चली है तो बिल्कुल सर, मैं प्रयागराज में रहता हूँ सर, पता होगा आपको। तो यहाँ पे इलाहाबाद में रहते हो? सॉरी कॉलेज। तो सर सेम यही प्रॉब्लम से स्टार्टिंग में हुआ था। लाइक जैसे हम लोग स्टूडेंट जाते हैं सर फर्स्ट ईयर में, तो ये प्रॉब्लम काफी होती है कि उनको मेस नहीं मिलता या फिर इस टाइप का ऑनलाइन सिस्टम नहीं मिलता, जो कि जैसे हम लोग जैसे चाहते थे कि सर ऐसे कुछ ऑनलाइन मिले, फूड डिलीवरी मिले, बट उसमें जोमेटो स्विगी नहीं था सर फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और मेस वगैरह जो है लंच सिस्टम, अगर अगर सही रिक्वायरमेंट अगर आपको फूड की फुलफिल की जाए ना, तो फिर सबसे बढ़िया रहता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो जो रहता है कहीं भी जाता है, पटना भी जानता हूँ मैं, छपरा मतलब उसी स्टेट में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पता है मुझे कैसे स्टूडेंट को सरवाइव करना पड़ता है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। घर का अगर आप खाना इसको नहीं मिलता। ऑनलाइन, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कोई भी स्टूडेंट के लिए, तो वो आपको पक्का पैसा देगा, बट मेन चीज है कि आप उसको खाना बस सही कर दे दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बट क्या होता है ना कि कोई किसी का जाओ तो चावल फिर वो रहता है मतलब, या फिर काफी दिन का दे देते हैं, या फिर जो रोटी रहता है वो मतलब सही नहीं रहता, कॉस्ट तो को आप आराम से घटाने के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, राइट? एग्जैक्टली सर। तो अगर तब भी कॉस्ट तब भी 60 रुपीज पर प्लेट रहता है सर, उनका बस नहीं कि काफी मतलब कम है, बट अगर 50 to 60 भी जा रहे हो तो आप सही खाना दो ना, तो फिर रेस्टोरेंट पे पक्का आएगा आपके पास, यस मिस्टर मेरा नीरज, पॉइंट यू हैव से। कमेंट और प्लीज। ऑनलाइन वाला तो सर बेस्ट। ठीक है, आते हैं वापस आते हैं। यस मिस्टर नीरज प्लीज। निशा, जस्ट Yeah. फॉर योर ऑन अंडरस्टैंडिंग, जो आप Yeah. मॉडल की बात कर रहे हैं इसको क्लाउड किचन मॉडल बोला जाता है। मतलब आज की अच्छा। भाषा में अगर आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे कि आपका कहीं पे एक किचन है, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, लेकिन वहाँ पे डाइन इन नहीं है, वहाँ पे बैठ के कोई नहीं खाएगा। ये सबको जो भी खाना है वो आप उसके घर पे पहुंचाओगे और उसके डेस्टिनेशन पे उसने कहीं पे भी जहाँ पे बोला है वहां पे पहुंचाओगे। इस कॉन्सेप्ट को क्लाउड किचन कहते हैं। एंड ठीक है। वेरी बहुत जो ये काम है ना, इट्स मोर देन वर्किंग एंड मेकिंग सम प्रॉफिट, इट्स फुलफिलिंग, ठीक है। अपनी जो ओके। एक आत्मिक शांति जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। वो वाला काम होता है। और मेरा मानना पर्सनल लेवल पे ये है कि अगर आप इस तरह की सोच के साथ अगर कभी भी कहीं पे भी काम करना चाहें तो ये चीजें चलती हैं, नो डाउट अबाउट इट। बस आप सही से कीजिए और क्वालिटी को मेंटेन कीजिए, राइट तरीके से कीजिए, जरूर होगा। और इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज तो है नहीं कि इसमें कैसे क्या, सिंपल है। आपको यू नीड सम इनिशियल, जो भी आपको किचन को बनाने के लिए जो भी एक स्टार्टिंग में जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो सब उसकी कॉस्टिंग हो रहेगी। उसके अलावा हाउ यू विल बी serving the people, like you will be sending it in a tiffin box, or you will be just sending in some disposable kind of packaging, जो कि बस आपने दिया और वो लोग खाया और फेंक दिया। तो वो भी एक इसमें बड़ा पॉइंट है दैट यू शुड लुक आफ्टर, क्योंकि अगर आप टिफिन बॉक्स का कॉन्सेप्ट रखते हैं तो टिफिन बॉक्स का पहले इनिशियल कॉस्ट है, उसके बाद उसकी फिर थोड़ी बहुत रिकरिंग कॉस्ट भी रहेगी मेंटेनेंस वगैरह की। किसी ने कुछ तोड़ दिया, किसी ने कुछ कर दिया, फिर उसको वापस उठा के लाना है, रोज उसको धुलवाना है, उसको फिर धुलवा के बढ़िया से फिर उसको फिर दोबारा से पैक करना है। तो यू शुड लुक टुवर्ड्स ऑल दोस पॉइंट्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट। माय विशेस आर विद यू। गुड। या मिस्टर राम हैज अ कमेंट प्लीज। Yeah, I was about to say the same thing what Mr. Neeraj has said, the cloud kitchen model. One major problem I would see in this business would be the customer acquisition. With the Swiggy and Zomato aggressively marketing about the other restaurants in the same region, so we need to you need to come up with something innovatively to persuade the hostels or the student community. So it can be like something like Mumbai's Dabba Wala, where you are not only delivering the carriage, you are delivering the food as well. Something like that. It is completely operation intensive model. Exactly the student needs on the same day. So, and one more thing is the challenges, coming to the challenges. The same person might not opt for few days. So how we will get to know? It's like you need to know that this person Ram in this hostel would not need on Friday evening dinner. So keeping the track of it, you have to innovatively work on certain app where you can keep track of those, and you have to keep track of what is getting delivered to whom.
And then one more thing, Patna being a very big city, if you have one hostel somewhere on the one corner of the city, and there is other hostel where you have customers, and you will be working somewhere near to one particular hostel, delivering the food to the other end of the city, say, which is 15 kilometers it would be difficult to deliver it every day, and your operational costs increases. With the same cloud kitchen model, you can integrate with there's one more model called quick service restaurant. It's like what it is like, you can research about the Oyo new business model, and then the Fasos, how it works. If we see, Fasos is basically the roles that we that are being delivered to the customers. So they get semi cooked in their head office in Delhi, and over the whole country will be the whole country it is supplied through air, and then in the nearest QSR, the quick service restaurant, it is just heated up and packed and delivered to the customer. So you can try to integrate the cloud kitchen model and this QSR together, and then you can come up with something innovatively which keeps you something different from what regular Zomato and Swiggy are doing. That can be your USP while doing the business. Yeah, one USP she said was it's ghar ka khana, it's homemade. Swiggy, Zomato haven't really. I think they are starting maybe, but they haven't really captured that homemade. Yes, that market is still untapped. And it's very personalized, right? So it's a very taste specific. Like, you know, it's like my food versus your food kind of. The taste will be very different because yes, rather than the taste, also the packaging and the service model can impact that feel of Ghar Ka Khana. Correct. So this is Atul. I joined late. This was Nisha from Nisha with some food delivery startup, right? Ghar Ka Khana tiffin in Patna. और कहाँ पे? Based in Patna, right? Yes. Yes. तो निशा, मैं भी पटना से हूँ, तो थोड़ा बहुत एक लोकल आइडिया भी देना चाहूँगा, और भी सिलिकॉन वैली में हूँ, तो यहाँ से भी थोड़ा आइडिया शेयर करना चाहूँगा, if you're okay? Yeah, I am okay. What? कौन बोल रहे हैं? अतुल कुमार. अतुल कुमार. Okay. Please proceed. Yeah. तो पटना में काफी चूंकि पेरेंट्स रहते हैं और फ्रिक्वेंटली जाते हैं, तो आपको तो पता ही हुआ कि पटना का जो अशोक राजपथ वाला जो रोड है, जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उन्हीं के किसी पेइंग गेस्ट मॉडल या किसी न किसी तरह के इलीगली लीगली बीएन कॉलेज, साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे स्टूडेंट्स भरे हुए, और आपका सबसे बड़ा उधर मछुआ टोली, अशोक राजपथ पूरा भरा हुआ है, सब भरा हुआ है, बोरिंग रोड, हाँ पूरा भरा हुआ है. आजकल और भी कुछ नए एजुकेशन हब्स बन रहे हैं, क्योंकि अब अशोक राजपथ में तो मुश्किल है, रहना मुश्किल है, सो क्राउडेड एंड सो कंजस्टेड. सो अभी कुछ नए इलाके, हाँ पूरा पटना कंजस्टेड है, बिजी है, बट अशोक राजपथ में गाड़ी चलाना मतलब कि बहुत एडवेंचरस है. तो स्टूडेंट्स के चूंकि वहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज थी या इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ से नीतीश कुमार पढ़े, तो बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सिटी सारा हॉस्टल्स वहाँ पे, उससे यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. तो जितने भी आईआईटी के, मेडिकल के, बैंकिंग के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सब उसी इलाके में है. तो अगर आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर पार्टनरशिप हो जाता है, तो आपका काफी बल्क में ऑर्डर आ जाएगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे स्टूडेंट्स आपके क्लाइंट्स बन जाएंगे, और आपके साथ कुछ वो मॉडल, बिजनेस मॉडल उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि उनका खुद भी अपना प्रिफर्ड, उनके खुद के हो सकता है कि लोग जिनसे वो लोग खाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो ओनर्स हैं, उनका ही हो सकता है फूड का बिजनेस हो या उनके कोई परिवार का कोई बिजनेस हो. बट कोचिंग इंस्टीट्यूट वुड बी अ गुड टारगेट टू अट्रैक्ट. अगर B2B में ट्राई करना है कि बल्क में आपको चाहिए कि एक साथ 1000 स्टूडेंट्स का मिल जाए आपको, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वुड बी गुड. बैंकिंग, IAS, इंजीनियरिंग जितने भी है, प्लस उसके अलावा जो पटना में जो यूनिवर्सिटीज हैं, तो जो मैंने पहले ही बोला था, बट यूनिवर्सिटी के अलावा यूनिवर्सिटी भी थोड़ा स्प्रेड आउट हो गया है. तो पटना यूनिवर्सिटी, बीएन कॉलेज तो सब अशोक राजपथ में, बट अभी कुछ नया जो डेवलपमेंट हो रहा है, IIT पटना खुल गया है, जो कि काफी दूर है, आउटसाइड पटना लिटरली.
या चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ खुल गया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हैं, चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज, तो इतने सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल गए बिहार में, इंस्टीट्यूशंस हैं प्लस उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो लॉ का, मेडिकल का, तो उनके साथ अगर आप चाहो कि कुछ पार्टनरशिप करने का, तो दैट माइट गिव यू अ बल्क कस्टमर। एंड लास्टली मैं एक अपना एग्जांपल कैलिफोर्निया से देना चाहूंगा। कुछ स्टार्टअप्स के साथ मैंने कुछ साल पहले स्टार्टअप्स के साथ काम करता था, मेंटरिंग वगैरह, तो उसमें लड़कियां जितने भी थी, मुझे याद है कि उन सबका कुछ ना कुछ फूड स्टार्टअप का ही आइडिया था कि स्टार्टअप के लिए उनको बिजनेस प्लान, हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे, पर उनको बिजनेस प्लान पिच करना था, तो उन्होंने ज्यादातर मैंने देखा कि फूड टाइप का स्टार्टअप, जैसे आप उस टाइप का स्टार्टअप उन्होंने पिच किया था। तो मैं कुछ स्लाइड्स वगैरह भी होगा तो शेयर कर दूंगा, लेकिन लेसन ये देखा है, हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया के जो सबसे बड़े जो कुक है वो लड़की नहीं है, लड़का है, क्या नाम है, संजीव जी। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है नॉर्मली कि फूड है तो लड़कियों का ही होगा या फूड स्टार्टअप है। आप देखेंगे कि वर्ल्ड के जितने टॉप बड़े, जितने बड़े शेफ हैं, जितने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं चाहे होटल्स हैं, सबके शेफ मेल्स होते हैं। तो उस बायस को भी तो आपको देखना पड़ेगा कि कुछ मेल कुक्स भी अच्छे होते हैं, उनके साथ भी अगर आप कुछ कोलैबोरेट करेंगे तो शायद कुछ फायदा होगा। अब मैं चुप हो जाता हूँ। शेखर had a comment. Yes, Shekhar, please. शेखर के बाद नीरज can speak. Yes, Shekhar. Sir, I agree with Mr. Ram. Like I stay in Mumbai only. So whatever he was talking about Dabba, I was about to say say about Mumbai का डब्बा वाला only. So मुंबई का 85 किलोमीटर का लगभग कल्याण एंड सीएसटी का वो जो डिस्टेंस है, लोकल ट्रेन से एक तो बंधा हुआ है। सो मुंबई का डब्बा वाला दे टेक टिफिन फ्रॉम कल्याण टू सीएसटी, ये 85 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगभग वो लोग बाय मेकिंग यूज ऑफ लोकल ट्रेन एंड ऑल दोस थिंग वो डब्बा घर से पिक करते हैं और वहां तक छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे पटना में क्या ऐसा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है क्या, ये देखना पड़ेगा पहली बात तो। लाइक मिस्टर राम पॉइंटेड आउट कि अगर आपका एक हॉस्टल एक कॉर्नर पटना पे है और एक दूसरा है वो कहीं और है, मतलब इतने बड़े कस्टमर्स को कैटर करना है, तो फिर इसके लिए देखना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या है। ये एक देखना पड़ेगा कि आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज करना चाहते हैं। राम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, तो बोलना चाहूंगा कि चूंकि ट्रैफिक इतनी गंदी होती है वहां पे कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसका उपाय भी है कि अगर आप ये, बहुत सारे लोग तो बाइक पे, स्कूटर पे भी पूरा 3-4 टिफिन का डब्बा लेकर कैरी करते हैं, और वो 3 पे वो वाला जो ऑटो होता है ना अपना 3, वो बहुत फास्ट है, वो कहीं आप खड़ा पहुंचा देगा, तो उसको भी वो तो यूज करते हैं आप, रादर देन यूजिंग अ बिग कार या बिग सुमो जीप। एक ये 3 व्हीलर जो है वो बहुत एफिशिएंट रहता है, वो आपको किसी भी कोने में पहुंचा देता है। और नहीं तो एक और चीज किया जा सकता है कि इंस्टेड ऑफ कुकिंग फूड एट ओनली वन प्लेस, ये अगर पटना एक सिटी को मान लेते हैं तो वहाँ पे 2-3 सेंटर्स बनाए जा सकते हैं जहाँ से फूड को कैटर, मतलब वहाँ पे बना के और फिर जो नियरेस्ट प्लेसेस है वहाँ पे दे सके। क्योंकि अगर बड़ा शहर है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही जगह बनाया जाए, अगर हो सकता है तो इफ इट दैट इज फिजिबल वो देखना पड़ेगा। और सेकंड चीज की आपने बोला कि घर का खाना, मतलब घर का, तो वो एक होता है कि आप अगर स्मॉल क्वांटिटी में फूड बनाओ तो थोड़ा अलग टेस्ट आता है, घर का आता है। लेकिन अगर आप एक होटल की तरह और उस तरह से अगर आप चलाना चाहते हो तो फिर वो कहीं ना कहीं आइडिया थोड़ा सा ये हो जाता है। हमने भी हॉस्टल्स में देखा है, तो वहाँ पे भी अगर जिस दिन कम लोग रहेंगे खाने के लिए उस दिन खाना अच्छा बनता है, बट अगर ज्यादा लोग है, ज्यादा कस्टमर्स है, तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, खाने का टेस्ट और उस सब में प्रॉब्लम आता है। तो वो आप कैसे उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढने वाली है, उसके ऊपर एक थोड़ा देखना पड़ेगा। आई होप ठीक है। ये हो गया एक थोड़ा सा मैं एक और आइडिया ऐड कर, नीरज से, यस नीरज प्लीज। I'm Ram here. Ram, okay. I think Neeraj, okay, Ram then Neeraj. Yeah, one more doubt I have, is it only the subscription model or you are trying to cater needs of order basis as well, like Swiggy and Zomato? उसके हिसाब से आपका strategy भी change होना चाहिए for the business model. Both will have different strategies. So you need to work on integrating both into one, or only restricting yourself to only subscription model or only order based model. Both has its own pros and cons. Yes. Yes, Mr. Neeraj. विशाल, I like अभी मतलब बहुत बात हो रही है कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं।
I just want to put one example which is quite successful. हम ऑपरेशन इंटेंसिव मॉडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुड़गांव में एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जांपल है कंट्री डिलाइट, अगर किसी ने सुना हो तो। और बहुत ही यही सिंपल है कि वो दूध पहुंचाते हैं सुबह घर पे, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं थी। पिछले 1000 साल से लोग डब्बा लेके सुबह दूध देने आते हैं घरों में, और उसी को उन्होंने बहुत अच्छे से ऑपरेशंस में एक्सीलेंस हासिल की, और अराउंड 12 मिलियन की फंडिंग हो चुकी है उस कंपनी की, उस स्टार्टअप की, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में। और मतलब अभी लॉकडाउन में तो इट्स अ काइंड ऑफ बूम फॉर देम। मेरे जितने भी यहाँ पे आसपास के जितने भी जानने वाले हैं, हर कोई अभी कंट्री डिलाइट से ही मंगा रहा है, और पिछले शायद उनके कुछ 1-2 महीने में उनका जो बिजनेस है इट हैज गॉन अराउंड 20-30 टाइम्स। तो ऑपरेशंस में एक्सीलेंस हासिल करना एक अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग चीज है। राम हैज पॉइंटेड अ वेरी गुड आइडिया अराउंड इट, लाइक कि अगर एक हॉस्टल इतनी दूर है और पटना जैसी कंजेस्टेड सिटी और इन सब चीजों की बात करें, और हर रोज टाइम पे डिलीवरी पहुंचाना, कुछ मिस ना हो, उसने अगर दाल के साथ चावल बोले हैं तो दाल के साथ रोटी ना चली जाए, तो वो सब चीजों पे आपको बहुत फोकस करना होगा विद द टाइम यू स्केल अप इट। पहले मतलब पहले दिन से सबको पता है 1000 ऑर्डर नहीं आने वाले हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजें जो ऑपरेशंस में एक्सीलेंस है वो बहुत जरूरी रहेगी, जिस पे आपको फोकस करना होगा। एंड वन सच एग्जांपल कंट्री डिलाइट को आप स्टडी कर सकते हैं, इंटरनेट पे आपको उसके बारे में काफी कुछ मिल जाएगा। एक कोलकाता में भी एक स्टार्टअप है, आई थिंक दे प्रेजेंटेड, दे आर कॉल्ड होल मील। तो व्हाट दे डू ना कि दे जस्ट कनेक्ट, नॉट कनेक्ट एक्चुअली, दे स्टैंडर्डाइज होममेड हाउसवाइफ्स मील। जो हाउसवाइफ्स होती हैं घर में, हाउसवाइफ भी नहीं मतलब जो भी लेडीज घर पे हैं हु आर इंटरेस्टेड टू कुक, सो दे कुक ऑन अ स्टैंडर्ड मेन्यू, स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स सब कुछ है ताकि टेस्ट स्टेज स्टैंडर्ड, and they cook and they get orders every day, and then they are picked up by delivery boy who deliver by cycle to the students, ठीक है। तो ये भी एक है, इसको भी थोड़ा सा स्टडी किया जा सकता है। एक 5 साल पहले एक गुड़गांव में एक और स्टार्टअप था विशाल जी, अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, और अभी शायद उनके ऑपरेशंस भी नहीं रहे हैं यहाँ पे। दे वर जस्ट एग्रीगेटर्स। उन्होंने एक ऐप बनाई हुई थी, कोई भी, जैसे आज मेरे घर में अगर अच्छे से छोले बने हैं, एक फोटो खींचो, डालो, खत्म, ठीक है। आई हैव मेड सम रियली नाइस छोलास टुडे, एनीवन इंटरेस्टेड, लाइक पर बॉक्स 100 रुपीज, समथिंग लाइक दैट। और उनका जैसे ही आपका फिर जैसे मैं अब बैठ के, कोई स्टूडेंट बैठ के देख रहा है कि यार क्या खाना है, हाँ ये पिक्चर बड़ी अच्छी सी लग रही है, अच्छे से छोले लग रहे हैं, चलो इनसे मंगा लेते हैं, तो ही कैन ऑर्डर ऑन दैट। फिर वो जो ऐप वाले का बंदा है वो आएगा आपके घर से, आपके छोले उठाएगा और उसको जाके डिलीवर कर देगा। इट्स अ काइंड ऑफ जस्ट एग्रीगेशन, जो कि सब जगह पे हो रही है, ओला उबर सब जो भी सेम मॉडल, वही उन्होंने फूड में किया था, एंड इट वाज रनिंग वेरी गुड। आई डोंट नो लाइक व्हाट हैपेंड, लेकिन ये 5 साल पुरानी बात है। आई थिंक दैट्स ऑल गुड। थोड़ा सा ये टाइमिंग और अपना लगन, अपना जोश और व्हाटएवर, सब पे भी डिपेंड करेगा कि क्या है क्या नहीं है। And I think for you, Nisha, for just to start, I think you don't need to worry a lot about so many things. All you need is like, let's say 5-10 orders, 20 orders maybe in a nearby coaching या to be मतलब hostel, coaching वाले से या hostel वाले से setting कर लो, सीधा सीधा उसको बोलो कि you know I'll have this kind of price and this is the profit and we can split the profit whatever some ratio 50-50 50-60 जो भी है, जैसे रेडी हो जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट उनको एक मौका मिल जाएगा, और आई डोंट नो 1-2 बार उनको थोड़ा सा लाइक टेस्टिंग, फूड टेस्टिंग कराना होगा एटलीस्ट उस ओनर को या जो भी कोचिंग के हैं, या उनको ये भी बोल सकते हैं कि नो ये सारे स्टूडेंट का आप ऑर्डर ले लो, आपका इसी में रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री। वो देखना पड़ेगा वो अलग अलग जगह कैसे कैसे काम होगा। तो ये है, बट इसको मतलब इसमें इसको सुनने में पेपर में उतना शायद ना दिखे प्रॉब्लम, करते समय ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, और हर दिन होगा कि छोड़ देते हैं, इतना हेडेक क्या लेना है, तो नॉर्मल कुछ नौकरी कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ आएगा। तो आई थिंक जो हमारा टॉपिक है पार्ट टाइम स्टार्टअप, राइट, डू इट एज अ पार्ट टाइम,
इफ यू डू इट एज अ पार्ट टाइम, तुम्हारा वो रेगुलर पे चेक या जो भी है रेगुलर मनी आता रहेगा, ट्यूशन पढ़ा के या जैसे भी जो भी है, मतलब व्हाटएवर becomes like a side project for you. And once it kicks up, you can think about making it full time. I think मैंने भी अपने 2.5 साल में यही सब देखा कि पार्ट टाइम स्टार्ट करना इज द बेस्ट. स्टूडेंट लोग भी पार्ट टाइम ही स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट भी पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं. सब कुछ छोड़ के स्टार्ट करना is too dangerous and not a lot of person can take that much headache. ये सब सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, तो आपने सही बोला कि most people can't afford it, कि अगर आपने सब कुछ नौकरी छोड़कर स्टार्ट कर दिया, नहीं चला, फिर क्या करेंगे. कुछ लोगों का फैमिली बैकग्राउंड होता है कि उनके पास इतने पैसे हैं कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, चल जाए काम, लेकिन मोस्ट पीपल कांट. सो पार्ट टाइम इज अ गुड आइडिया. द अदर थिंग इज कि द बेस्ट पीपल टू लर्न फ्रॉम इज योर क्लाइंट्स. आपके जो कस्टमर्स है ना, आप जो बना रहे हैं चावल, बट पता चला कस्टमर्स को चाहिए रोटी. तो बिफोर मेकिंग ए परफेक्ट बिजनेस मॉडल, परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड, और मेरे ख्याल से आप स्टार्ट करो, फिर सीखो, फिर चेंज करो, rather than assuming कि कस्टमर को ये चाहिए, क्लाइंट को ये चाहिए. क्या आपका डिमांड है पता नहीं. जैसे अभी मैंने पहले बोला कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है, बट मे बी सरकारी ऑफिसर सेक्रेटेरिएट में बहुत सब लोग अपना लंच लेके आते हैं. बैंक्स के बहुत सारे जहाँ आपको पता ही होगा वो सेक्रेटेरिएट वाला इलाका बेली रोड पे, तो बेली रोड पे सेक्रेटेरिएट वाले ऑफिस में इतने सारे ऑफिसेज है, इतने सारे वहाँ भी इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के. उन सबको घर का खाना चाहिए, तो बहुत सारे लोग घर से लेके आते हैं, बट अगर उनको या कैंटीन में मिलता है, बट हो सकता है कि उनको ये होम डिलीवरी का ऑप्शन होममेड लोकल मिल जाए तो बहुत अच्छा है. थर्ड पॉइंट लास्ट इज कि हाउसवाइफ्स बहुत बड़ा सेक्टर है, स्पेशली पटना और बिहार जैसी जगह में, जो कि काम नहीं करती हैं, ऑफिस में काम नहीं करती, घर पे रहती हैं. उनके वो आपके पास बहुत बड़ा वर्कफोर्स है, उनको आप किस तरह से यूज कर सकते हो. तो आप उबर ओला टाइप्स बहुत बड़े स्केल पे जा सकते हो, क्योंकि उनके घर का खाना मिलेगा, कस्टमाइज रहेगा. हाँ, क्वालिटी एश्योरेंस वाला होगा कि बहुत सारे आपके बनाने वाले हो जाएंगे, तो सबका क्वालिटी अगर ठीक नहीं हुआ तो आप ट्राई करो. लेकिन आप हाउसवाइफ्स को भी ट्राई करो कि आंटी जी और नानी जी, दादी जी जो बनाती बहुत अच्छा है खाना, लेकिन वो अपने घर के लिए बनाती हैं और उनको कुछ पैसा भी नहीं मिलता. लेकिन गवर्नमेंट उनको पता चला कि उनका एक पॉकेट मनी का ये सोर्स हो गया आपका ये फूड मॉडल, तो वो सारे लोग आपके क्लाइंट ही हो जाएंगे. और उस मार्केट में बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, तो आपने किसी नानी को बता दिया बात तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा, तो आपको वायरल बहुत जल्दी हो जाएगा. जी, सही है. Any other question you have, Nisha? Like anything that you didn't understand, or anybody else want to add any comment, please? कोई एडवाइस? मुझे पटना में ये काम करने के लिए अभी तो लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़े टाइम के बाद मुझे एक टीम बिल्ड करना है. मुझे वहाँ पे के लिए एक टीम चाहिए, सॉलिड टीम चाहिए. पार्ट टाइम ही करे, लेकिन हाँ मुझे अच्छी टीम चाहिए. तो मैं आपको शेयर करता हूँ अपना कुछ. तो मैं बहुत सारे बिहार के लोगों को जानता हूँ, मतलब कि गवर्नमेंट के भी लोगों को, वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को भी, कुछ सारे विशाल भी जानते हैं ग्रुप में. मैं बिहार एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क करके एक संस्था बहुत 2011 में लॉन्च की थी, बट बाद में फिर छोड़ दिया कि लोकल गवर्नमेंट का थोड़ा इंटरफेरेंस था. लेकिन आप ये जो नेटवर्क्स हैं बहुत सारे स्कूल के, कॉलेजेस के, और एंटरप्रेन्योरशिप का भी बिहार में अभी थोड़ा फैशन स्टार्ट हो गया है, जो बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली में था, बिहार में हो गया. तो इस कम्युनिटीज के थ्रू आपको टीम भी मिल जाएगी. आपको जिस तरह की टीम चाहिए, आपको वेबसाइट डेवलपर चाहिए मिल जाएगा, आपको कुक चाहिए मिल जाएगा, आपको मार्केटिंग के लोग चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा. तो आप इस नेटवर्क को, सोशल नेटवर्क्स को थोड़ा आप एक्सप्लोर करो, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, और मैं तो ज्यादातर ग्रुप्स टेलीग्राम पे चलाता हूँ, उसमें भी हजारों लोग हैं. तो आप उस ग्रुप्स को यूज करो, तो आपका मैसेज राइट ऑडियंस था, आपको टीम बिल्डिंग में मिल जाएगा. और बेस्ट टीम बिल्ड करना होता है रेफरल के थ्रू. आप सीवी और उसके थ्रू पे धोखा हो जाता है कि यार अपने क्रेडिबिलिटी पे दांव लगा के बता रहा है कि नहीं ये जो फलाना है बहुत अच्छा कुक है, तो उसको मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा rather than hiring somebody from ऑनलाइन वेबसाइट और करियर साइट. ओके, ठीक है. तो एक चीज और डिसाइड करना होगा, टीम मतलब कितने लोग. टीम 10 का भी होता है, 50 का भी होता है. टीम अभी फिलहाल जो है हम लोग जो टीम होंगे वो कम लोगों की टीम होगा, लाइक 4 to 5 पीपल मैक्सिमम. इतने लोग काफी होंगे. एक अभी शुरू में कितना मिलेगा, एक बंदा जो मार्केटिंग के लिए
ठीक है, और एक दो बंदे मिलके जो है जो कुक करेंगे, या जो भी कुकिंग जितना काम है 4-5 बंदों में हो जाएगा शुरू का। फिर जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा जो नीच डेवलप करता है, उस तरीके से नंबर ऑफ किचन्स बढ़ाएंगे, या फिर देखेंगे ये जो बता रहे थे अभी कि जैसे हाउस वाइफ्स जो है उस तरीके का, ठीक है। लेकिन हाउस वाइफ में ना एक चीज हो सकता है कि अगर किसी भी क्लाइंट को, जैसे कस्टमर को पता चलता है कि XYZ आंटी खाना दे रही, तो क्यों ना हम उनसे डायरेक्ट ही ले लें। ये भी एक तरीके का चीज यहाँ पे आता है, क्योंकि हम लोग ऐसा कर चुके हैं अपने हॉस्टल के टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक समस्या हो जाता है। तो अगर हाउस वाइफ को अगर हम लोग यूज भी करते हैं तो वो चीज जो है कॉन्फिडेंशियल वो रखना होगा। हाँ, तो निशा, अतुल नाम है मेरा। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, ये जो भी बड़ी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो अमेजन हो, गूगल हो, वो कस्टमर को सब प्रोटेक्ट करके होना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है। तो आपको सबसे पहले आपको एक टेक्निकल टीम खोजना पड़ेगा, और आपको IIT पटना खुल गया है, NITs है, और बहुत सारे वेबसाइट बनाने वाले लोग हैं, ऐप बना देंगे आपके लिए। आप कुछ इंटर्न्स रख लो जी। इंटर्न्स का फायदा है कि फ्री लेबर है, ठीक है। उनको भी एक स्टार्टअप का एक्सपीरियंस मिल गया, आपके फूड स्टार्टअप का, और आपको भी फ्री लेबर मिल गया। और बहुत सारे लोग हैं, छोटे कॉलेज के हो चाहे स्कूल के हो, उनको काम आता है, वो कोडिंग भी कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। इस ग्रुप में जैसे नमन है, स्कूल में ही 12th में, काफी स्मार्ट है, बहुत सारे लोग हैं। तो उन आप स्टूडेंट्स को हायर करो, चाहे स्कूल के हो चाहे कॉलेज के हो, या IIT के भी बच्चे, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरियल इंटरेस्ट है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, IIT पटना के या और भी वहाँ के लोकल कॉलेजेस के। तो टेक्निकल टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैंने सीखा है, एम्प्लॉइज से काम थोड़ा मुश्किल होता है करना, हायर करना, आपके पास पैसे चाहिए, ये चाहिए। आप को फाउंडर अगर आप खोज सकते हो तो आपको फायदा करेगा, आप क्योंकि को फाउंडर होने से ना आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, हर चीज के लिए को फाउंडर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है। तो आप अकेले मत करो, आप को फाउंडर, अकेले नहीं, जी। हाँ, को फाउंडर्स कुछ खोज लो। हाँ। एक लिज्जत पापड़ का केस स्टडी है, वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। उसमें उन्होंने क्या किया, ये जो हाउस वाइफ वाला इशू था, डायरेक्ट ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, सबको बिजनेस पार्टनर का ऑफर दो, ठीक है, विद सम शेयर। क्या वैसे ही अमूल का मॉडल, अमूल तो पूरा कोऑपरेटिव मॉडल था, मिल्क रिवॉल्यूशन इंडिया में है, अमूल आनंद वाला। हाँ, उससे क्या वो फैमिली बन गई ना, मतलब अपने लोग अपना कोई अपना ही कंपनी को कोई खराब नहीं करेगा ना, आउट ऑफ द वे जाके। अच्छा, वो जो पैसे भी आएंगे ना, वो लोग अपना मिनिमल जो लेना होगा लेंगे, बाकी सारे पैसे कैन बी यूज्ड एज कंपनीज ग्रोथ। वो एक ऑप्शन है। तो मतलब जैसे 5-10 पार्टनर हो जाते हैं, तो वो 10 पार्टनर ही शायद सारा चीज कर ले, और जो प्रॉफिट आएगा या जो लॉस आएगा वो उसी अपने हिसाब से इक्वल भी है बांट ले। इससे क्या है कि एक बंदे पे बर्डन नहीं है। इक्विटी, जो विशाल वाला, इक्विटी के थ्रू आप काम कराओगे लोगों से, तो उसका ओनरशिप भी ज्यादा हो जाता है कि भैया ये निशा कंपनी नहीं है, बट किसी अजय कुमार और प्रीति ने या सोनिया ने या स्वाति ने अगर आपका टीम ज्वाइन किया, बट एज ए को फाउंडर या इवन एज इक्विटी, को फाउंडर सब नहीं बनेंगे, मान कुछ इक्विटी आपने दिया, और इक्विटी डिफर्ड इक्विटी होगी। अभी तो आप IPO करने वाली नहीं है, तो फ्यूचर के लिए, बट उनको थोड़ा सा दिखना चाहिए कि मेरा भी इसमें इंसेंटिव है, तो इक्विटी वाले आपके लिए थोड़ा ज्यादा लॉयल होंगे, फिर उनको खींचना भी थोड़ा आसान नहीं होगा बाकी लोगों के लिए, कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो ये सब है। I mean, ये सब से you can think about, I mean, make more concrete plan and start finding partners। अभी लॉकडाउन का टाइम है, सब खाली पड़े हैं। People might be looking कि तो पार्टनर यही तो मिलेंगे, को-फाउंडर्स और पार्टनर्स जो भी है मिल जाएगा। पार्टनर पे सॉरी विशाल, एक और बोलना चाहूंगा, बिहार में काम कर रही हैं, पटना में काम कर रही हैं, तो बिना सरकार के बहुत कुछ मुश्किल हो जाता है करना, तो किसी IAS ऑफिसर की वाइफ को बना लो पार्टनर, आप देखो कि काम आपका कोई नहीं रुकेगा। कि मतलब कि इम्पोर्टेंट ऑनेस्ट किसी को, मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ, तो आप उन लोगों को अगर आप पार्टनर बनाते हो, तो आपके बहुत सारा जो लॉजिस्टिकल लोकल, या कोई आपके टीम में ही कोई IG पटना के IG का, DGP का की वाइफ हो, या उनकी बेटी हो, या जो भी रिश्तेदार है, तो बहुत सारा आपका जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व कर लेंगे। आपको करना नहीं, पता चलेगा कि अच्छा निशा की टीम के एडवाइजरी बोर्ड में फलाना वो मैडम है, मतलब कि वो सीनियर SP की वाइफ, या वो IAS की वाइफ, या ISC कोई लेडी,
तो आपके बहुत सारे जो ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम, आपके बहुत सारे आपको लोकल गुंडा और जो प्रॉब्लम्स है वो सब होता है, वो प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा सॉल्व हो जाए, क्योंकि अच्छा ये भी प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं, अगर हुआ तो भी हो सकता है ना। अच्छा, आप बिहार में नहीं रही है लगता है? नहीं, हम बिहारी और बिहार में ही रहे, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है लिटरली। नहीं तो आपने किया, उनको नहीं पता होगा ना। नहीं तो आपने बिजनेस नहीं किया ना, आप एज ए स्टूडेंट तो वहाँ पे रही हैं, तो हाँ, स्टूडेंट का आपका अलग प्रोटेक्टेड लाइफ था, फैमिली से गए और आपको पता है कि हॉस्टल में गए, फिर पढ़ाई के लिए गए, जॉब के लिए गए, लेकिन रोड पे आप नहीं उतरी हैं, सामान बेचने नहीं निकली। जिस दिन आप रोड पे उतरिएगा ना, तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली इट्स नॉट दैट कूल। इसमें जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, हर एक इंडस्ट्री में एक माफिया होता है। वो जरूरी नहीं है कि वो आपको बॉक्सिंग करके पंच मारने वाला ही मसल वाला होता है, लेकिन अलग अलग तरह के माफिया होते हैं। हर एक इंडस्ट्री में माफिया मिलेगा आपको, जिससे अगर आप उसमें घुसना चाह रहे हैं तो एक बार रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। वो नीरज जी के पॉइंट पे कि जिसकी रोटी आप खा रही हैं, नीरज जी आपने बोला कि कल के जिसका बिजनेस आप डिस्टर्ब कर रही हैं, बहुत सारे वहाँ पे ऑलरेडी फूड डिलीवरी कंपनीज होंगी या रेस्टोरेंट्स हैं, उनके आप रोजी रोटी को आप उनके लिए आप कंपटीशन है, तो वो लोग आपको बहुत परेशान करेंगे। उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कैसे, स्पेशली लड़की है तो ऑटोमेटिकली उनको लगेगा कि चलो इसको तो डरा के भगा दूं मार्केट से। और ये केवल पटना बिहार की बात नहीं है, यही चीज आपको बॉम्बे में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, लंदन, हर जगह मिलेगा। लेकिन पटना थोड़ा, चूंकि मैं जानता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि वहाँ सरकारी वाला माफिया थोड़ा ज्यादा काम करता है, मतलब कि आप IAS ऑफिसर्स और BPS वो सारे ऑफिसर्स से भी आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो बहुत सारा रिक्वायरमेंट है हमको। निशा, you have any more questions या कुछ नहीं, अभी तो हम यही देख रहे हैं कि अभी तो हमको बहुत कुछ, मतलब अभी मेरे पास टाइम है, अभी 3-4 महीना जो है, इतने टाइम में जैसे को फाउंडर्स टीम बिल्डिंग जो है, हम इस पे वर्क कर सकते हैं लाइक। और जो अतुल सर ने बोला ना IAS वगैरह की वाइफ, उनको अगर वो पार्टनर ना आना चाहे, हो सकता ना आना चाहे, एज एन एडवाइजर आप बोलना आइए, आप वो इज्जत वाला चीज हो जाता है, वो जल्दी रेडी हो जाएंगे उसके लिए, और स्टेक भी नहीं देना पड़ेगा। मेंटर बना लो, एडवाइजर बना लो। किसी IAS को हम जैसे अभी पटना के जो SSP हैं, वैभव विकास नाम है ना उनका, बहुत अच्छे SSP हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं, मेरे से कनेक्टेड भी है फेसबुक पे, तो ठीक है, हम देखते हैं, बात करते हैं। अगर उस लेवल के नहीं होता तो एक लेवल नीचे भी चलेगा, बट एक लेवल नीचे भी चलेगा, ठीक है। हाँ, नहीं कभी कभी नीचे वाला ज्यादा काम आता है आपको, सीनियर SP SSP या DIG से। अच्छा, मेरी दीदी खुद ही गेस्टेड ऑफिसर है AG ऑफिस में, तो चल जाएगा काम, या फिर नहीं ऑफिसर तो हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं ग्राउंड लेवल पे जो होता है ना, कि जो दरोगा होता है सबसे पावरफुल होता है पुलिस में, इंडियन पुलिस में। वो DGP नहीं होता है, IG नहीं होता है, DI नहीं होता है, सबसे पावरफुल क्या होता है? दरोगा, जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्क करता है। हाँ, क्योंकि उसके पास फील्ड में वो जाता है ना, उसके पास लाठी है, वो घूमता है, जानता है। तो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी देखा कि उन्होंने दरोगा लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि दरोगा ग्राउंड पे होता है, उसके पास ग्राउंड लेवल का इंटेलिजेंस रहता है, तो उनके बिना कुछ भी नहीं हो पाता। हाँ ठीक है, कांटेक्ट कर लेंगे। कुछ और अभी किया जा सकता है लॉकडाउन के टाइम, कुछ नाम सोचा जा सकता है, कुछ लोगो वगैरह, फेसबुक पेज बनाया जा सकता है, लोगों को थोड़ा अवेयर किया जा सकता है कि आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग दिस, ये सजेशन दो, ये करो, वो करो। उससे क्या है कि एक ऑथेंटिसिटी दिखता है। ऐसे तो हो गया कि एक सेक्चिल्ली जैसा बोल दिए तो पता चला घड़ा टूट भी गया, जो कहानी है सेक्चिल्ली का, ठीक है। सो टू मेक थिंग्स लुक सीरियस एंड make things look serious for yourself also, you should start doing things and you should keep क्या बोलेंगे, एक पूरा कागज पे कुछ लिखते रहना है, ठीक है ना, चलते रहना है। ये नहीं कि आज बात की है और अब 1 महीना तक पूरा ब्लैंक ही रह गया है पूरा कागज। दिमाग में नहीं रखना, जो भी है, जैसे मिसाल ने बोला कि रिटन में होना चाहिए, गूगल डॉक पे कागज पे लिखिए। और एक चीज मैं बोलना भूल गया था कि मैं सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, तो एक हमारा सैनिक स्कूल तिलैया, अच्छा,
तो मैं गई हूँ। अच्छा, हाँ, तो सैनिक स्कूल के लैया का नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत सारे आपके IAS हो, पुलिस वाले हो, सब सैनिक स्कूल के हैं। और एक और दूसरा उससे भी पावरफुल नेटवर्क है नोबा, नेतरहाट का, या हजारीबाग का जो गर्ल्स का जो स्कूल इंदिरा, तो हजारीबाग का जो अलुमनी नेटवर्क है गर्ल्स का, बहुत बड़ा पावरफुल नेटवर्क है। नोबा जो है भारत सरकार नोबा चला रही है, भारत सरकार, बिहार सरकार नहीं। अभी आपके जो टॉप जो मोदी जी के जो सेक्रेटरीज हैं टॉप वो सारे बिहार के IAS ज्यादा होते हैं, तो वो सारे नोबा के अलुमनी हैं। तो आप नेतरहाट एसोसिएशन में किसी को जानती हो, मैं परिचय करा दूंगा। प्रोफेसर प्रभात रंजन है या विजय प्रकाश है, अभी IAS रिटायर हुए हैं। हाँ, विजय प्रकाश से भी कॉन्टेक्ट कीजिएगा, उनकी बेटी तो US में रहती है, लेकिन विजय प्रकाश बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प भी करते हैं उनका एजुकेशन में। उनकी विजय प्रकाश जी, मंजुला प्रकाश, तो मैं नाम आपको इतना सारा देकर ओवरवेल्म नहीं करना चाहता हूँ, बट लोग बहुत हैं, आपको उस राइट नेटवर्क से जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल का नेटवर्क हो, चाहे कॉलेज का नेटवर्क हो, चाहे वो IAS का लॉबी हो, वकील लोग का लॉबी हो, डॉक्टर्स का, सारे इस ग्रुप्स को आप टैप कीजिएगा ना, तो आपका बहुत सारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये एक और चीज मेरे माइंड में आया जस्ट, कि जैसे अतुल सर ने बोला कि किसी IAS की वाइफ, तो अगर वाइफ नहीं है तो वाइफ की बहन भी चलेगी, ठीक है, और IAS की भी बहन चलेगी, IAS की पोती भी चलेगी। तो कहीं से कहीं ने कोई ऐसा रिलेशन जो डायरेक्ट उनके रिलेशन को मतलब थोड़ा लेवरेज कर पाए, वो भी लोग चलेंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा यू हैव मोर ऑप्शंस नाउ, ठीक है। नहीं, और ये आपका ज्यादा कंट्रोल है। किसी आपने जो पॉइंट बोला कि IAS से ज्यादा अगर IAS की बेटी आपके साथ है, तो फिर तो पापा से जो चाहिए वो करा देगी, आप पापा उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो वो आपके IAS की वाइफ से भी ज्यादा IAS की बेटी या वो आपके या बेटा ज्यादा काम कराएगा। मैंने देखा है, बहुत पावरफुल IAS लोगों का काम मुझे कराना था, तो उनके बेटा ने, या एक मिनिस्टर भी है बिहार के, उनके बेटा ने मुझे सीधा रात के 12 बजे अपने पापा, अश्विनी चौबे जो हेल्थ मिनिस्टर, उनसे मिलना था। उन्हें रात के 12 बजे अपने पापा को बोला कि देखिए अतुल जी 4 महीने से आए हुए हैं न्यूयॉर्क से पटना में मैराथन कराने के लिए, लेकिन अभी तक CM से मीटिंग नहीं हो पा रहा। तो रात के 12 बजे उन्होंने बुलाया, और अश्विनी चौबे जी के बेटे ने, और उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या चाहिए, कागज, तो कागज तो कल कैबिनेट की मीटिंग है, बिहार सरकार के नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग है, उस मीटिंग में तुम्हारा मैं लेटर उनके हाथ में दूंगा। और दिया भी, मेरे एक MLA भी एक मेरे सीनियर है मनीष कुमार, उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारा लेटर अश्विनी जी ने सामने में कैबिनेट की मीटिंग में दिया था। तो ये जो परिवार वाला कनेक्शन जो विशाल जी ने बोला, वो बहुत पावरफुल होता है। आप परिवार को यूज कीजिए तो आपका काम रुकेगा नहीं। ठीक है फिर चलो, तुम्हारा आई थिंक और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कम अगेन अगले मीटिंग में। ओके हाँ। ओके, वी हैव वन मोर पर्सन, नम्रता हैज जॉइंड। Namrata, are you listening? Hello. Yes, Namrata, are you here? Yes, Bhaiya, I can hear you. I have one question. Yes. Actually, the thing is, I'm planning to start an NGO in Jamshedpur. Correct. Yeah, so that's why I came to you, because you have been asking me many times. So now is a good place to ask, where others can also advise. Thank you so much, Bhaiya. I had sent you invite in Facebook. I think that is how you know about it. Yes, please. So please explain kya hai. Yes, thing is basically I have been in teaching field since past like 6 or 7 years something. अपने ही स्कूल से पास आउट करके मैंने वहाँ पे पढ़ाया भी है and all of it. बच्चों से जुड़ी भी हूँ, काफी सालों से ट्यूशंस ले रही हूँ. Since I was in 11th standard, I've been taking tuitions and all. So like in this lockdown period especially, this thing came in my mind that private school, public school के बच्चे सारे तो ठीक है online पढ़ रहे हैं. What about government school people? मतलब जो वो बच्चे who are not privileged to have that online teaching and everything, somehow talking to so many people, reaching out to so many people, I got to know somebody in education department. So now she said ki this Jharkhand government is running this online programs and everything. So I don't think so all of the governments are very serious about it, but post lockdown I want to work seriously on, मतलब मैंने पूरा वो लिस्ट निकाला है गवर्नमेंट स्कूल्स का, कितने विलेजेस हैं पूरे ईस्ट सिंहभूम में, एटलीस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम. So see, there are many points when we talk about this generation, present generation, वही तो कल का फ्यूचर बनेगा ना, राइट?
तो ये जो कई तरह अलग अलग तरह की मानसिकता है कि भाई अगर पढ़ा दोगे, एक तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लाओगे, दूसरा चीज है कि लेबर के बच्चे तो लेबर ही बनते हैं, तो फिर कल को लेबर नहीं मिलेगा क्योंकि पढ़ लिख के तो कोई लेबर का काम करेगा नहीं। सो मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन कि टेक्नोलॉजी नहीं आ पाती है, लेबर सस्ते हैं इंडिया में। सो बहुत सारा ये जो बदलाव अभी जब चेंज का एक वो दिस ये वॉल्केनो अर्थक्वेक आया ही है चेंज का, जब लोगों में ये अवेयरनेस एकदम मतलब एक जागरूकता आई है, तो व्हाई नॉट एक्चुअली वर्क इन दिस फील्ड। मेरे को मतलब ये एक नीड ऑफ एन आवर लग रहा है। So I just want guidance from all of you at how I can really do my part of contribution in this. Namrata ji, you have spoken about very like multiple things and very generic ones, I would say. तो आप जो कह रही हैं कि लॉकडाउन पीरियड आपने बोला, फिर आपने एजुकेशन ऑफ फॉर पुअर बोला, तो like how you want to proceed कि ऑनलाइन टीचिंग के मॉडल पे काम करना चाहते हैं, या यू वांट टू गो टू स्कूल्स, यू वांट टू गो टू विलेजेस एंड कहाँ पे जाके, या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके, मतलब हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट इट आप, क्योंकि दोनों चीजों की बात कर पा रहे हैं अभी तो आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड कि आप ऑनलाइन की ही बात कर रहे हैं या ऑफलाइन मॉडल की बात कर रहे हैं। Thing is कि I am not talking about online or offline teaching model. Okay, what I am talking about is if you go through the syllabus of government school, you will be shocked. In 7th standard, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D is taught. I'm sure यहाँ पे जितने भी participants हैं, we all are from private schools, right? What is the level? So my wife is teaching in MCD school in Delhi. MCD schools जो होते हैं वो म्युनिसिपल रन करती है, और वहाँ पे मैक्सिमम रेडी पटरी वाले दिल्ली तो बहुत अच्छा कर रहा है। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो मुझे वहाँ का अच्छा आइडिया है मुझे कि वहाँ पे क्या है लेवल ऑफ। अभिषेक चौधरी हैज वर्कड ऑन SMCs। उसका फोर्ब्स मैगजीन में आया था। वो मेरे और विशाल भैया का जूनियर है और मेरा सीनियर है। उसको हमारे स्कूल के प्रिंसिपल काफी टाइम से खोज रही थी कि वो गया, तो बंदा गया कहाँ, उसका फोन स्विच ऑफ है। वो दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि जमशेदपुर में? नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जमशेदपुर का एक बंदा गया था दिल्ली में। he was working in theater। उसको लगा कि नहीं, he needs to work with government schools, तो उसने एक NGO बनाया साझा, and he is working for the government schools in Delhi। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का बहुत बुरा हाल था। 95% गवर्नमेंट स्कूल्स अगर अच्छा कर रही है तो वो मेरे ही स्कूल के एक सीनियर की बदौलत। तो एक बंदा वाराणसी का आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। मैंने अन्ना हजारे मूवमेंट के टाइम में केजरीवाल वाले के साथ काम किया था। तो एक लड़की थी आतिशी, लंदन में से पढ़ के आई है, आतिशी, वो एजुकेशन देखती थी। वो अभी है कि नहीं? वो है, वो भी है, वो सीनियर मोस्ट है। उन्होंने अभी MP का इलेक्शन लड़ा था, ये क्रिकेटर जो हैं ईस्ट दिल्ली से, उनके खिलाफ। शी लॉस्ट दैट। आतिशी मरलेना नाम है उनका, एंड शी इज वेरी एक्टिव। आतिशी जो है ना, वो भी चूंकि एक लड़की है और काफी दुनिया देखी हुई है, पॉलिटिशियन है, तो वो भी आपको काफी सारे हर्डल्स दूर कर सकती है। आप जस्ट रीच आउट करो पर्सनल लेवल पे, फेसबुक वगैरह पे अवेलेबल है सब। ठीक है। नहीं, एक्चुअली नम्रता का क्वेश्चन है लाइक फॉर अदर प्लेसेस दिल्ली इज ओके, एंड आई थिंक लाइक नीरज इज आल्सो सेइंग दिल्ली इज ओके लाइक एज वाउच्ड। My wife is throw some light to her. last year जो मेरी वाइफ के पास क्लास थी, एक्चुअली प्राइमरी स्कूल्स में होता क्या है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट लेता है सुबह से, और जब मतलब और MCD स्कूल्स में तो यही मॉडल है, एक टीचर एक क्लास को पूरे दिन पढ़ाता है, उसमें कोई अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर नहीं आता है। तो शी वाज हैविंग फर्स्ट स्टैंडर्ड, और उनके पास लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स दे हैव स्टार्टेड इंग्लिश मीडियम सेक्शन एज वेल, और मेरी वाइफ के पास इंग्लिश मीडियम सेक्शन ही था। तो दिल्ली में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि 7th में जाके ABC सीख रहे हैं, बट झारखंड और बिहार का मुझे आइडिया नहीं है। शी मस्ट बी राइट कि वहाँ पे ऐसा होता होगा। तो अगर आप इस लेवल की बातें कर रही हैं कि स्कूल का जो करिकुलम है उसको ठीक कराना है, ऑनलाइन क्लासेस जो झारखंड गवर्नमेंट चला रही है, मैं लिंक भेज दूंगी। नहीं, आई टोटली ट्रस्ट यू नम्रता, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता है। गेट टू नो
I'm not saying that you are having any distrust on me. What I'm So trying to tell you is that you can also understand कि क्या ground level का reality है और कितने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. मतलब गवर्नमेंट का ही डिसाइड किया हुआ सिलेबस है. सो आई हैव दिस प्रॉब्लम जो अभी यू सेड कि दिल्ली के साथ ऐसा नहीं है. तो यू नो दिस इज एन ओपन क्वेश्चन टू द पीपल आउट देयर जो कि अलग अलग स्टेट्स हैं यहाँ पे. क्योंकि मेरे को एजुकेशन डिपार्टमेंट ये बोला, आई रेज दिस क्वेश्चन, आई हैव दैट व्हाट्सएप चैट and the phone conversations recorded. So what she is saying that this is the job of no, this is decided by the government, so this is what we have to follow. So if it is Jharkhand government has is the one who is deciding the syllabus, तब तो ये बहुत गलत बात है. और अगर दिल्ली स्कूल, मेरे हिसाब से तो ये SMC डिसाइड करता है, स्कूल मैनेजिंग कमिटी, कि एक स्कूल का क्या सिलेबस होना चाहिए, उस स्कूल में किस लेवल के बच्चे आ रहे हैं, राइट? वो तो उस स्कूल का लुकआउट है ना. सो there are too many things to be looked after. आज अगर मैं एक एग्जांपल रेज की हूँ अभिषेक चौधरी का, what he has done, उसने he has particularly worked on SMC, School Managing Committee, जो कि इनफैक्ट RTE एक्ट में भी है. आप समझ रहे हैं मेरी बात? हेलो नम्रता जी, जस्ट लिसन फॉर 2 minutes. मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं कि I am particularly interested in talking about an NGO, how to flourish it. Like my main focus is on the sector, on BPL class people, जिनके बच्चे, you know, उनकी कोई गलती नहीं है, they are not privileged just because they are not born in a good family. तो हमारे जब ये लॉ में है, RTE एक्ट में, तो कितना ये फॉलो होता है, and how can I increase participation? मतलब मुझे कोई पॉलिटिशियन या किसी भी XYZ के बारे में डिस्कशन नहीं करना है. What I have participated in the conversation to understand from all of you that how if like I want to start an NGO, क्योंकि ये स्टार्टअप का कॉल है, so like how I can increase participation in my NGO. पहले मैंने अपना ऑब्जेक्टिव बताने का कोशिश किया कि why I want to start this NGO, why I feel that this is the need of an hour. Now my question is that how I can increase participation in and how I can, you know, start this NGO basically. Yes, Neeraj, please tell like how Delhi evolved, maybe like what gaps. Sorry, Vishal, I'm out of this conversation for now. Anyone else? Oh yeah, Karthikeya raised the hand. Yes, please. Yeah, hi. So, Ms. Namrata, let me start with one thing that I might be able. I'm not directly involved in anything like that. मेरे को कोई idea नहीं है, but I might be able to help you out in some ways. So, like my mom and my nani ji, मेरी मौसी and everyone is into teaching line. My nani ji was a teacher in a government college, and my mom as well. Besides that, I can connect you with someone जो आपकी बहुत help कर सकता है, because exactly, I mean, at least what I can absorb what you said right now, she has done that all the way, and she's been. So I belong to Jodhpur, and वो Jodhpur में ही she's running an NGO. There's this lady, Miss Aparna Modi. She's a good friend of mine, and what I can exactly, you know, मेरे को जो समझ आया है जो आप बोल रहे हैं, she's been doing this exactly for a lot of years in Jodhpur. So if you want, I can connect you with her, and not me, but at least she can help you out in a lot of ways. So Jodhpur में, you know, Jodhpur की government ने, they provided them some land, some basic infrastructure, and वो basically जो land है उनको slums में मिला है, and वो slums के अंदर ही classes लेती हैं. She asked for volunteers that whoever wants to come down, everything is good to go, and she's not working anywhere. कुछ family business है and whatever, but she's full time into this own NGO. So if you want, you know, I can connect you with her. I mean, that is all I wanted to say. And besides that, my mom and my nani ji, I can connect you with them as well. You know, आप उनसे थोड़ा guidance ले सकते हैं. Since my mom has been working as a principal in a private sector, and nani ji was in government sector, तो उनको काफी knowledge है, the, you know, how at the back end how things work and things might work. So basically, I think it would be much more convenient for you अगर मैं आपको अपर्णा दीदी से touch में ले आऊँ. So this is all just I wanted to say. Thank you so much. It means a lot, and seriously, this kind of like this is what I was looking for. And also, like my question was how I can increase participation in my NGO. So one of your family members since already running an NGO in Jodhpur, so I think it will be better if, like, you know, I talk. Yeah. So that person can share experiences. You can. Yes, Shekhar, you had a comment. Yes, Shekhar, please.
Shekhar, are you here? Yes, Shekhar. Can you hear me? Yeah. सर एक्चुअली बिहार में एक एनजीओ है ज्ञानोदय करके, प्रभाष झा चलाते हैं, और उनका भी ऐसा था, ही सीए बाय प्रोफेशन, और बाद में उन्होंने वो छोड़ के मतलब सोशल वर्क में आए वो, और पटना में और मधुबनी और बहुत सारे, मोस्टली मधुबनी में उनकी एनजीओ काम करती है, जहाँ पे वो जो ऐसे जैसे मैडम बोल रही है कि जो सरकारी स्कूल के, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उनको पढ़ाते हैं वहाँ पे, लेकिन सबसे प्रॉब्लम उनके सामने भी यही आता है। और सिंस मैं उनके साथ पिछले 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो फिर वही होता है कि हम लोग भी यहाँ पे उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो मुंबई या बाकी जगह से जो लोग हैं, वो लोग कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, लोगों से कंट्रीब्यूशन लेके देते हैं। तो अगर नम्रता मैडम बोल रही है करना है कुछ, लेकिन सबसे बड़ी बात वो हो जाती है कि जो उसके लिए कैपिटल लगने वाला है वो कहाँ से आएगा। आई मीन एक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ही पढ़ाना है, तो आप वहाँ की जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक तो बहुत गंदी हालत में होता है, फिर वहाँ पे आप और जो भी चीजें लेके आएंगे, अगर मान के चलो कुछ नए अच्छे टीचर्स रखने हैं, उनको पेमेंट देना पड़ेगा। सब लोग तो सिर्फ इसके लिए, सोशल वर्क के लिए तो नहीं कर सकते, आपको करना है, लेकिन अगर आप कुछ टीचर्स को रखना चाहती है तो उनको पेमेंट देना पड़ेगा। तो वो सब कैसे जुगाड़ होगा, मतलब वो सब कैसे होगा, उसके बारे में बहुत सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, हो जाता You are going out of track. You are going out of track. What I am saying is, the government के पास तो teachers है ना, teachers training program we can run. We can run teachers training program. We can. I need participation in my in my NGO. राइट सो उसके लिए मतलब मुझे टीचर्स नहीं रखना है, ठीक है। अगर मुझे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो विल बी कभी कोई मंडे फ्री है, कोई सैटरडे फ्री है, इफ दे वांट टू गो टू द विलेजेस, जैसे यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं, लाइक देयर आर लाइक इतने सारे विलेजेस है, यू कैन गो देयर, टीच देयर, क्रिएट अवेयरनेस, एटलीस्ट टॉक टू टीचर्स, मोटिवेट देम कि आप भेजिए, पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए। I can give them my number if they want any kind of help or whatever. But as far as this payment and all of thing is concerned, वो वही सब के लिए ही तो I have joined this call ना, to how to flourish this NGO, how to start an NGO, right? So Namrata ji, from scratch, and I have not even yet started it. So Namrata ji, money is not a problem, पैसा का प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट कितनी सारी प्रोजेक्ट्स हैं, they don't know कि कहाँ पे खर्च किया जाए, और उनका पैसा चूंकि यूज नहीं हो पाता एक साल, तो अगले साल पे अगले उनके बजट में नेक्स्ट टाइम कम मिलता है। तो गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर, नॉट ओनली गवर्नमेंट, इवन बिजनेसेस का भी बहुत सारा, अगर CSR का हो या उनका भी फंड है। एग्जैक्टली, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरा बात हुआ तो उन्होंने तो कहा ही कि आप आइए, मिलिए, बात करिए, अपना आपका जो थॉट है, आपका जो आइडिया है, वी विल यूज इट, वी विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट इट। जहां आपको आपके आइडियाज को, या आपको जो भी लगता है, 1 लोग है, 2 लोग है, जितने भी लोग जुड़े हैं, आप लोग जरूर आगे आइए। आज ये जो झारखंड गवर्नमेंट ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर पाया है फॉर गवर्नमेंट स्कूल, प्रथम के साथ मिलकर, गवर्नमेंट स्कूल भी तो आज कोलैबोरेट किया है ना, with partnership with some or the other NGO। तो वो तो देख ही रहा है कि कोई NGO आए सामने जो हमें भी हेल्प करे, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही आदमी लोग बोल रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम है कि व्हाई टीचर्स आर नॉट टीचिंग बिकॉज द गवर्नमेंट इज यूजिंग देम इन सम अदर वर्क। इलेक्शन कमीशन में यूज करते हैं, घर घर जाइए, हाँ नोट करिए कितने व्यक्ति हैं उस घर में, नहीं पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, उनको तो बहाना मिल गया। COVID-19 के लिए भी टीचर्स को यूज what I am thinking is to use विशाल भैया's idea। विशाल भैया ने मुझे एक आइडिया दिया था, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अनुज सर को बोलने दो, he is giving some advice, you are here to take advice, right? Yes, what I was thinking was that to increase the participation, you can rope in the existing, there are some student committees in the established institutes that are running in the Jharkhand area, like NIT Jamshedpur might be there, XLRI Jamshedpur might be there, IIM Ranchi might be there. So there are committees, student bodies that are running inside the institutes that do social work. So you can connect with them, they might help you in some way or the other. They might be doing some work in that in the same field, so you can collaborate with them on some level. So that might help you in increased participation. Okay.
Atul sir, you had also some advices, please. Yeah. So what I was saying is that participation is not that big a problem. Money is also not that big a problem. Problem is कि आपको right लोगों के through और right लोगों तक approach करना होगा, उनको team में अपने add करना पड़ेगा. जो पिछले वाले डिस्कशन में बोला था कि कुछ लोगों को आपने एडवाइजर रख लीजिए कुछ कर लीजिए, वो आपका बहुत सारा काम करा लेंगे. जहाँ तक बात है अटेंडेंस की बढ़ाने की, कैसे हाउ टू एंगेज द स्टूडेंट्स, तो अभी गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये कोरोना लॉकडाउन हो गया, उनके स्कूल नहीं चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, तो दे आर लुकिंग फॉर पीपल लाइक यू. गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, दे ऑल आर लुकिंग फॉर पीपल लाइक यू. द ओनली थिंग इज कि दे डोंट नो हाउ टू रीच यू. नम्रता को जानते नहीं वो लोग. दैट इज अ प्रॉब्लम. ये जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है ना, कि कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई एनजीओ टाइप का काम कर रहा है, चलाना चाहता है, और किसी के पास एनजीओ को देने के लिए पैसे हैं या काम है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो गैप इन्फॉर्मेशन, दैट इज अ गैप नीड्स टू बी फिल्ड. एंड दैट्स वेयर जो विशाल ने ये काम किया कि आपको जोड़ा इस ग्रुप में बहुत सारे लोग आपको हेल्प कर सकते हैं. अनुज जी भी थे, और भी बहुत सारे ग्रुप है, नीरज जी, बहुत सारे लोग आपको हेल्प कर सकते हैं. तो आपको अपने आइडिया को थोड़ा सा आर्टिकुलेट करके एक फ्लायर के रूप में, पावर पॉइंट के रूप में, मैं तो प्रेफर सबको बोलता हूँ गूगल डॉक बना के शेयर कीजिए. एक वीडियो बना सकते हैं, और भी अच्छा है. उस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ग्रुप्स में, तो धीरे धीरे वायरल होगा, राइट लोगों तक पहुंच जाएगा. और किसी से मिलने के लिए भी आप मिलने के पहले उनको एक वीडियो का लिंक भेज दीजिए कि दिस इज हु नम्रता इज, दिस व्हाट नम्रता's बैकग्राउंड इज, कि आपने क्या किया है, क्या करना चाह रही. तो पावर पॉइंट स्लाइड्स के ज्यादा या वो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स ज्यादा एक वीडियो आपने बना दिया, दैट वीडियो इटसेल्फ विल टेल द स्टोरी. एंड देन बाकी फिर वो they get interested in you, and once they get interested, then फिर आप डिटेल में वो सवाल पूछेंगे, आपके पास वो ऑलरेडी आपके पास डॉक्यूमेंटेड वीडियो है. then you can start sharing them कि हाँ, ये हमारी टीम है, ये हमारा प्लान है, ये करना चाहते हैं. and then the one last thing is very important कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, और दूसरा है कि उनको क्या मिलेगा फायदा. अल्टीमेटली एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर हमको क्या फायदा मिलेगा. फायदा नीड नॉट बी मॉनेटरी. किसी को नाम मिलेगा वही काफी है, किसी को पार्टनर मिल जाएगा. तो आप इन दो क्वेश्चंस का आंसर के साथ आप रेडी रहती है कि व्हाट्स नीड फॉर मी एंड व्हाट डू यू नीड, ये दोनों चीजें, या मैं उसको कॉल टू एक्शन ही बोलते हैं कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए तो फिर आगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा. तो वो आपके पास कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि सामने वाले से पैसा लेना है, सामने वाले से गाइडेंस लेना है, सामने वाले से कुछ कॉन्टैक्ट चाहिए. तो वो कॉल टू एक्शन आपका बहुत क्लियर कट आर्टिकुलेटेड होना चाहिए, और एक वीडियो बनाकर आप लोगों को कन्विंस कीजिएगा. उसके बाद बहुत सारे जो नेटवर्क्स बताया पहले भी, ये जो स्कूल के, गवर्नमेंट, इतने सारे जो नेटवर्क्स हैं, उन नेटवर्क्स के थ्रू अपने मैसेज को प्रोपोगेट होने दीजिए. एंड देन कॉल टू एक्शन ये होना चाहिए कि वो साइन अप करें आपके किसी फॉर्म पे, आपके किसी वेबसाइट पे, सो दैट कि आपको वो सारे, आपकी कहानी हजारों लाखों लोगों ने सुन लिया, बट उसके बाद क्या, तो लास्ट स्टेप में मिस हो जाता है. तो लास्ट स्टेज पे उनको पता होना चाहिए कि इस फॉर्म पे भर दो, तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो लोग भर देंगे, एंड उसमें आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि हाउ दे कैन हेल्प यू एंड ऑल दैट थिंग. तो आपको एक डेटाबेस मिल जाएगा लोगों का. फिर देन उसके बाद आप सिलेक्टिवली उनमें स्क्रीनिंग करके लोगों को अप्रोच कर सकती हैं. Yes, do you have, Mr. Karthikeya has some advice for you? Yes. Yeah, so I actually feel such a, just forgot to mention my elder sister. So what Mr. Atul said right now, to connect with the right people. So meri badi behan, she is currently working with Teach for India, that's Times of India group, and what exactly you are saying, they work totally in that. And I believe if so my sister, she is working with good administration for them. So they usually have the kind of volunteers or participation which they have, that is mostly paid, and they pay well, but then the people coming down there, they are not there for the money. Let me tell you something. So again, main aapki help nahi kar sakta, but then I believe if I can connect you with my sister, she'll actually be able to help you out very well with the participation part. And Aparna Didi ka to jaise maine bola, she's also doing it on a smaller level, but as for the participation, Teach for India particularly, they can actually help you out very well. Karthikeya, how to reach to you? My email ID, WhatsApp number, whatever is convenient to you. Please tell me your WhatsApp number. Yeah, I'll just it's please type in the chat box, is in the group also, so yeah, chat box is disabled. Oh, chat box is disabled. Oh yes, okay, only I am
Since that time I'm trying to type something, but then I now notice that it's विशाल ग्रुप का disabled. ये भी तो था, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप था, उसपे भी पीपल कैन हाँ मैं कर देता, भेज देता हूँ एक मिनट। Please मुझे ऐड कर दीजिए if there is any WhatsApp group. WhatsApp I think is full. But Oh, seat is full. I'll share. Yeah, we are full. Okay भाई, आप मुझे ही भूल गए ना, thank you so much. Yeah, I didn't make it full. People joined all of a sudden. People joined, but I never got to know about this group only. Never mind. Yeah, okay. Or कुछ suggestions, anything you want to ask? First question or something? तो ये जो विशाल का जो प्रॉब्लम है ना कि ग्रुप फुल हो गया, दैट इज द प्रॉब्लम सिचुएशन यू वांट टू बी इन, कि आपके पास इतने ज्यादा लोग आपसे जुड़ना चाहें आपके एनजीओस के कि आपका ग्रुप फुल हो जाए, और फिर आपको स्केल अप के बारे में सोचना होगा. तो दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव फॉर एनी एनजीओ, राइट? Remove dormant people. No, Atul sir is giving advice. नाम पे 2 लाख हो सकते हैं, फिर लिंक्डइन पे, फेसबुक पे या बाकी सब प्लेटफॉर्म्स पे लाखों लोग हो सकते हैं. तो Miss Namrata. Yeah, go ahead please with your question. Yeah, so I just wanted to ask that I guess you have the basic idea, but then actually frankly मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया what exactly like are your basic plans at least to start with the NGO? Basic plan is this only, that how to reach out to the marginalized group. मतलब सपोज विलेजेस है, यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं जो रिमोट एरियाज है, जो रूरल एरियाज है, वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, मतलब अगर वेयर आई एम सेइंग राइट नाउ, तो ये यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स है उसको अर्बन स्कूल्स कहा जाता है, अर्बन गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है. तो जो रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे यहाँ पे अगर पार्टिसिपेशन कम है, बच्चे कम है, समझ में आता है. बट अगर गाँव में भी बच्चे कम है या कम है तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है. अगर गाँव में स्कूल है तो वहाँ के जो टीचर्स है, टीचर्स भी वैसे ही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? वहाँ के सो ये जो सारे प्रॉब्लम है, क्या सबसे पहले तो गवर्नमेंट को पता है तो उनके क्या प्लान्स है, मतलब टू मतलब नॉट एग्जैक्टली कि क्वेश्चन दागना, बट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो यहाँ मेरे घर के पास नहीं है, बिस्टुपुर बोल के है, तो दे आर ओपन अबाउट दिस. इफ आई हैव एनी आइडिया, इफ आई कैन टॉक अबाउट ऑल दिस, मतलब वो तो मुझे खुद ही आधा प्रॉब्लम बता रही थी कि ये सब प्रॉब्लम्स है. शी इज हरसेल्फ आइडेंटिफाइंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स. तो क्या गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट अपना ये बोल रहा है कि टीचर्स तो मतलब हम टीचर्स को हायर करते हैं, पर गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है टीचर्स हायर करने का वही बहुत बेकार है. उसके बाद जब टीचर्स हायर करते हैं तो वो टीचर्स नहीं पढ़ा पाते क्योंकि दे आर गेटिंग एंगेज्ड बाय द गवर्नमेंट इन सम अदर वर्क. तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है गवर्नमेंट के लिए टीचर्स को प्रॉपर टीचर्स को हायर करना. तो आई थिंक एनजीओ कैन ओनली हेल्प टू दीज पीपल. और यहाँ पे आई डोंट नो अबाउट बॉम्बे, आई डोंट नो अबाउट दिल्ली, आई डोंट नो अबाउट बैंगलोर, आई डोंट नो अबाउट कैलकाटा, आई नो अबाउट जमशेदपुर फ्रॉम वेयर आई एम. यहाँ पे ऐसा कोई एनजीओ नहीं है आगे बढ़ के जो ये बोल सके कि हाँ, जो अभी भी झारखंड में जो आदिवासी गांव सब है, इतना सारा पटमदा, बोकारो और पता नहीं क्या क्या कितने सारे, मतलब आई हैव लिस्ट ऑफ लाइक 200 विलेजेस, और उसमें उस विलेजेस में कितने और छोटे छोटे जगह है, मतलब जहाँ पे मतलब कितने हजारों स्कूल्स है जहाँ पे जिसका कोई टीचिंग का कोई मतलब 25 लाख आबादी बोलते हैं जमशेदपुर का, बट आई थिंक 50% आर नॉट गेटिंग एजुकेशन, 50% ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग एजुकेशन. नम्रता, झारखंड में थोड़ा कम है, लेकिन है, वहाँ भी एनजीओज हैं और गवर्नमेंट के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अच्छा काम कर रही है. आपको वही जो पहले भी बोला था कि राइट चैनल्स के थ्रू आपको खोजना पड़ेगा. मेरा चूंकि पूरा ननिहाल मतलब कि नाना नानी सब जमशेदपुर के थे, तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो मौसी, वो मामी, वो मामा, वो है कजन, तो बहुत सारे लोग हैं. और बेस्ट पार्ट जमशेदपुर का क्या है, विशाल भी जमशेदपुर से है, कि जो टिस्को टेल्को जो आपका नेटवर्क है ना पूरे वर्ल्ड में, दुनिया का सबसे नेटवर्क कोई शहर है तो वो जमशेदपुर, क्योंकि जमशेदपुर के लोग पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं. तो आपको टिस्को टेल्को और वहाँ के इंडियन केबल और जो लोकल है उनको आपको रीच आउट करना पड़ेगा. बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही वाइड स्प्रेड है. जस्ट आप उस अपने
फैमिली में या एलुमनाई नेटवर्क, या जो जमशेदपुर का लोयला स्कूल बहुत पावरफुल है, लोयला स्कूल के एलुमनाई बहुत पावरफुल है। लोयला स्कूल में तो इवनिंग स्कूल चलता ही है। हाँ, नहीं तो बोले कि आप तारापुर, लोयला, तारापुर, दिव्य में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, ओनली 4 schools in Jamshedpur, and also Narve Ram Hansraj English School. These I think 4 or 5 schools run evening schools for like Hindi medium it is called. तो इन सारे स्कूल के आप जस्ट एज ये मत सोचिए कि स्कूल, उस स्कूल के जो एलुमनाई है, दे आल्सो मेनी ऑफ देम रन एनजीओस, दे ऑल कनेक्टेड ऑल ओवर। तो अब स्कूल के एलुमनाई को रीच आउट कीजिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जमशेदपुर के हैं, कोई आईआईटी में है, कोई आईआईएम में है, कोई हार्वर्ड में है। आप स्कूल के एलुमनाई को टैप कीजिए, आपको टू मेनी कॉन्टैक्ट्स टू, आपको जो भी चाहिए मिल जाएगा। थैंक यू सर। So Miss Namrata, like as you mentioned participation, तो मतलब basically आपकी बात सुन के मुझे जो समझ आया, तो you basically want to know how to involve people. आपके पास में बच्चे हैं पढ़ाने के लिए, but you want people to be involved, right? Okay, perfect. ठीक है, तो I think ठीक है, perfect, मैं समझ गया। I've sent you my WhatsApp number. आप देख लीजिए आपको मिल गया हो तो, and I can connect you with my sister who is working for Teach for India. I think she'll probably be the best thing for you. Okay, thank you. Great. Anyone else has any comment or suggestion or question, please? Or we can finish today's session. We'll resume tomorrow with more ideas. Okay. Namrata, you have any other question or? No, as of now, no. Okay. So I think you can connect with Atul sir, Karthike later. I need Atul sir's number. No, दिया ना उन्होंने। मैंने शेयर किया, चैट में शेयर किया था अपने नंबर। ग्रुप में भी I added you. WhatsApp, I think some people left, so I added you. Okay. I don't know. I think Karthike, Atul sir's, yes, Atul sir's number I've got. Okay. So yeah, you can continue with let's say your updates and things. So yeah, okay. So I think today's session khatam karte hain. So we'll continue tomorrow with the same format for more startup ideas, and we'll see what advices and things can we do for them. Okay. So good night for today. Bye bye.